Welcome back, class 12th. Let's continue our 10th chapter. Today, this is the fourth part of chapter 10, and we have to discuss steps in the trading and settlement procedure. So, without wasting any time, let's begin. It has made compulsory to settle all trades within 2 days of the trade date. ट्रेड डेट जो भी होती है उसके 2 दिन के अंदर अंदर सेटलमेंट करना होता है. नाउ व्हाट इज सेटलमेंट? लाइक इफ ए बाइज some shares from broker B. Okay, broker B execute the order of X Limited. Okay, now when A gives order to B execute the order and buys the share. So when he buys and when share gets transferred to A's demat account, then A make payment to B and B makes payment to X Limited on behalf of A, and then A also makes payment of the brokerage of broker B. Thus the settlement process completes. So this procedure completes within 2 days of the trade date, that is known as T+2, and it is prevalent since 2003. Prior to the reforms, securities were bought and sold, means traded, and all positions in the stock exchange were settled on a weekly or fortnightly settlement cycle. पहले ये इतना जल्दी 2 दिन में सेटलमेंट नहीं होता था, उसको ऑलमोस्ट 15 डेज पूरा होने में लग जाते थे, बिकॉज पहले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी नहीं होते थे. सो बिकॉज इट वाज डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज़ और पेमेंट ऑफ कैश, तो इन सारे चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता था. This system prevailed for a long time as it increased the volume of trading on the exchange and provided liquidity to the system. Online transaction से बहुत जल्दी liquidity बहुत ज़्यादा आ गई, because all the transactions which are being done with a broker will be settled down within 2 days only. Okay, so all parties would have cash in their hand in the limit of 2 days only. However, since trades were to be settled on the specified dates, this gave rise to speculation, and price of shares used to rise and fall suddenly due to trading and defaults by brokers. अब ट्रेडिंग और डिफ़ॉल्ट्स क्या हैं कि जैसे जो भी जैसे ट्रेडिंग डेट सपोज 2 दिन में सेटलमेंट हो गया, बट नाउ दिस A wants to complete that particular transaction in a future date, on a future date, not within 2 days. He wants to buy a particular company's share on a particular date of next month. Then he may do so by giving some extra brokerage to the broker. So a new system, that rolling settlement, was introduced in 2000. Okay, what was rolling settlement? That whenever a trade took place, it would be settled after some days. Since 2003, all shares have to be covered under the rolling settlement system on a T+2 basis, meaning thereby that transaction in securities are settled within 2 days after the trade date. ठीक है, ये T+2 का जो रोलिंग सिस्टम वो 2003 से ही एप्लीकेबल है. सिंस रोलिंग सेटलमेंट एम्प्लाइज फास्ट मूवमेंट ऑफ शेयर्स. ठीक है, शेयर्स का मूवमेंट जो है वो बायर के नाम में 2 दिन के अंदर वो ट्रांजेक्ट हो जाएगा. वो 2 दिन में वो उसमें नाम चेंज होके और बायर की डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, और बायर 2 दिन के अंदर उसे पेमेंट कर देगा.
तो ये क्या है कि फास्ट मूवमेंट ऑफ शेयर्स होता है एंड इट रिक्वायर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एंड डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। इलेक्ट्रॉनिक एक तरफ फंड ट्रांसफ़र हो रहा है कि जो बायर है शेयर्स का वो कंपनी को पेमेंट कर रहा है थ्रू ब्रोकर, एंड जो कंपनी है उसको डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर कर रही है उसके डीमेट अकाउंट में। So the following steps are involved in screen-based trading for buying and selling of securities. Now in this book, 10 steps are given, children, and in other books only 5 steps are given. In fact, in the notes also only 5 steps are given. So kindly go through the steps from here, from NCERT book only. Okay, please do not go through the notes, please, for the steps only. स्टेप के लिए ये यहीं NCERT बुक से ही आपको रीड करना है चिल्ड्रन। सो फर्स्ट step is that if an investor wishes to buy or sell any security, he has to first approach a registered broker. ठीक है, सबसे पहले रजिस्टर्ड ब्रोकर से को अप्रोच करना होगा, उससे कांटेक्ट करना होगा, ओके, उसका सेलेक्ट करना होगा। ब्रोकर्स भी बहुत सारे हैं, ब्रोकर्स में से कौन से ब्रोकर से वो अपना ट्रांजैक्शन वो कंप्लीट करवाएगा तो उसे सेलेक्ट करना होगा। वो ब्रोकर हो सकता है या वो सब ब्रोकर हो सकता है। एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिम, ठीक है, उससे एक एग्रीमेंट करेगा दैट यू वुड बाय शेयर्स फॉर मी। द इन्वेस्टर हैज़ टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट इन एग्रीमेंट एंड अ client registration form before placing an order to buy or sell securities. ठीक है, उसे ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट उसे साइन करना होगा और एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल करना होगा। he has also to provide certain other details and informations like PAN number, date of birth and address, educational qualification and occupation, then residential status, बेटा ये एग्ज़ाम में आ सकती हैं। देन बैंक अकाउंट डिटेल, देन डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल, ओके, मीन्स जो डीमेट अकाउंट से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो, देन नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद हुम रजिस्टर्ड एंड क्लाइंट कोड नंबर इन द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देन द ब्रोकर ओपन्स अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर, उसके नाम में ट्रेडिंग अकाउंट खोल देता है। देन द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमेट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट with a depository participant for holding and transferring securities in demat form. He will also have to open a bank account for cash transactions in the security market. ठीक है, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। देन थर्ड स्टेप इज द इन्वेस्टर देन प्लेसेस एन ऑर्डर। Third step is places an order with the broker to buy or sell shares. Then he has to give clear instructions to broker about the number of shares and price at which the shares should be bought and sold. The broker will then go ahead with the deal at the above mentioned price or the best price available. An order confirmation slip is issued to the investor by the broker. ठीक है, उसके बाद में वो जो ऑर्डर के लिए वो confirmation slip वो इशू कर देता है ब्रोकर, किसको, इन्वेस्टर को। Then the broker will go online and connect to the main stock exchange and match the share and best price available. Then when the shares can be bought or sold at the price mentioned, because जो इन्वेस्टर है वो बताता है कि इस कंपनी के शेयर्स इतनी प्राइस पर सेल करने हैं या परचेज करने हैं। सपोज़ इस किसी कंपनी के शेयर्स 2000 शेयर्स हैं जो कि 250 रुपीज़ में सेल करने हैं, ओके, मीन्स ये प्राइस कोट कर दी उसने। अब जब ये प्राइस उसने ब्रोकर ने जब उस पर ऑनलाइन उसने जब फीड की कंप्यूटर में, तो जो 250 रुपीज़ में उन शेयर्स को परचेज़ करने के लिए रेडी होगा, मींस जो बायर है और जो सेलर है दोनों का जो ऑर्डर है वो मैच करेगा,
ओके। और फिर जब वो मैच कर जाएगा तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, देन द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर कि ट्रेड हो गया है। ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप जो है वो इन्वेस्टर को देगा। उसके बाद में देखो, पहले उसको कौन सी जो स्लिप दे रहा है, पहले उसको दे रहा है ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप कि हाँ ऑर्डर दिया है। किसने? इन्वेस्टर ने ब्रोकर को। ठीक है, तो ब्रोकर ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप देगा इन्वेस्टर को। उसके बाद में ब्रोकर सेकंड स्लिप कौन सी देता है? वो देता है ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। एक तो ऑर्डर कंफर्मेशन था, एक ट्रेड कंफर्मेशन कि आपका ऑर्डर मैच हो गया है। ओके, एंड ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है इलेक्ट्रॉनिकली और उसका ट्रेड का कंफर्मेशन स्लिप है। देन आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर्स द ब्रोकर इशूज़ अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट नोट की मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट वो दोनों की पार्टी के बीच में करेगा। दिस नोट कंटेन्स डिटेल ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड, द प्राइस, द डेट, द टाइम ऑफ डील एंड द ब्रोकरेज चार्जेस। ठीक है, उसमें बेसिकली वो ब्रोकरेज चार्जेस की डिटेल लिखेगा। ठीक है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट इज़ लीगली एनफोर्सेबल एंड हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट्स और क्लेम्स। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये important है in case of any dispute arises. Then unique order code number is assigned to each transaction by the stock exchange and is printed on the contract note. Okay, वो contract note पे वो जो order code है वो भी printed होता है, जो कि stock exchange से उसे मिलता है ब्रोकर को। अब उसके बाद में इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट। ठीक है, अगर उसने शेयर्स सेल किए हैं तो शेयर्स डिलीवर करेगा और अगर शेयर्स परचेज किए हैं तो उसके लिए कैश पे करेगा। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शेल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज एंड दिस इज कॉल्ड पे इन डे। जब वो पेमेंट कर रहा है बेसिकली, या वो शेयर्स पे कर रहा है, शेयर्स जो डिलीवर कर रहा है, तो पे इन डे ये कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे विच इज़ बिफोर द T+2 डे एज द डील हैज़ टू बी सेटल्ड एंड फाइनलाइज्ड ऑन द T+2 डे। T+2 डे को फाइनलाइज होगी मीन्स 2 दिन में पूरा का पूरा वो सेटलमेंट हो जाएगा। मीन्स 2 दिन में ये सारा काम होगा। द सेटलमेंट साइकिल इज ऑन T+2 डे ऑन अ रोलिंग सेटलमेंट बेसिस। दैट इज वो 2001 अप्रैल 2003 से जो एक रोलिंग सेटलमेंट जो रूल जो एप्लीकेबल हुआ था, मीन्स उसमें सारे जो ट्रांजैक्शन थे वो ट्रेडिंग डेट के 2 डेज़ के अंदर अंदर वो वो कंप्लीट होंगे। ओके, ऑन द T+2 डे द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। अदर ब्रोकर मीन्स जैसे आज आपको कोई शेयर्स जैसे ए है, ए ने ब्रोकर B1 कर लेते हैं, ब्रोकर B1 को हायर किया अपने शेयर्स सेल करने के लिए। ठीक है, सेल करने के लिए। अब जो ब्रोकर B1 है वो प्राइस कोट करके फीड कर देगा टर्मिनल पे और उसका ऑर्डर मैच करेगा। अब इधर से जो सपोज M है, ठीक है, M जो है वो शेयर उसको बाय करने हैं। ये शेयर्स ये 250 रुपीज़ ये प्राइस कोट करता है, जो कि M रेडी हो जाता है। पर अब देखो M जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो भी तो किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू ही कर रहा है ना, तो ये हो गया ब्रोकर 2। ठीक है, तो ब्रोकर 1 का जो ट्रांजैक्शन है वो जब तक ब्रोकर 2 के टर्मिनल से मैच करेगा, ठीक है, और वो 250 के उसमें रेडी हो जाएगा। मीन्स एक्सचेंज जो क्या कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज
ब्रोकर 1 से ब्रोकर 2 को या तो शेयर्स डिलीवर करेगा या पेमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ब्रोकर्स इन्वॉल्व होंगे। सो एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। ओके, दिस इज कॉल्ड द पे आउट डे, ठीक है। ब्रोकर शेल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज। एक्सचेंज को जो पेमेंट कर रहा है, एक्सचेंज को जो शेयर्स डिलीवर कर रहा है वो पे इन डे है। देन जब एक्सचेंज पेमेंट कर रहा है अदर ब्रोकर को, तो वो पे आउट डे है, ठीक है। ब्रोकर 1 जब पेमेंट कर रहा है एक्सचेंज को, तो वो तो है पे इन डे, पे इन डे। और जब एक्सचेंज पेमेंट कर रहा है अदर ब्रोकर को, तो वो है पे आउट डे। The broker then has to make payment to the investor within 24 hours of the payout day, since he has already received payment from the exchange, ठीक है। पे आउट डे पे एक्सचेंज दूसरे ब्रोकर से पेमेंट लेके ब्रोकर 1 को कर देगा, ठीक है। और फिर ब्रोकर 1 उसे अपने इन्वेस्टर को कर देगा। Then the broker can make delivery of shares in demat form directly to the investor's demat account, ठीक है। अब जब पेमेंट हो चुका है पूरा, तब शेयर्स की जो डीमेट फॉर्म में वो डायरेक्ट डिलीवरी कर देगा। The investor has to give details of his demat account and instruct his depository participant to take delivery of securities directly in his beneficial owner account, ठीक है। और फिर उसके अकाउंट में वो सिक्योरिटीज़ डायरेक्ट डिलीवर हो जाएंगी और जिसका इन्फॉर्मेशन वो को देगा। डिपॉजिटरी हम आगे यहाँ पे अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, स्टे सेफ।